Good morning, all of you. Again, welcome in my YouTube channel, Basic Mathematics. Dear student, in the previous lecture, we have discussed about the exercise 12.1. I hope you have completed it. We have discussed about some basic properties. The first, basic identities. The first identity is a plus b whole square. The a plus b का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है. आप इसको यू शुड आल्सो राइट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b. दिस इज द बेसिक आइडेंटिटी. यू मस्ट लर्न इट. Without knowing this identity, you cannot factorize this type of equation in an easy way. If you have learned in your mind this identity, then you should solve this question within a second. Okay, let us see. First, see 25 m square. See 25. What is the square of the given number? You should write 5m. ये किसका स्क्वायर है? 5m का होल स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर. बी नो द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आइडेंटिटी कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. 2 is within our identities. 2 is the part of the identities, so we use 2. a की वैल्यू क्या होगा? 5m और b की वैल्यू क्या होगा? 3. तो सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये आइडेंटिटी आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. ओके, यू कैन राइट 5m प्लस b की वैल्यू 3. इस पूरी आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर है. ये a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. इट इज क्लियर? इट इज द आइडेंटिटी. यू शुड राइट लाइक दिस 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3, राइट? मतलब सेम आइडेंटिटी को सेम होल स्क्वायर को यू शुड राइट, बिकॉज़ पावर इज 2, यू शुड राइट द सेम थिंग्स एज 2 टाइम्स. इफ पावर will be 3, it means you should write same things as a 3 times. It is your result. It is clear? It is the result of the third part of the first question. Let us see. Next question. Suppose fifth part. Okay, the fifth part of the first question. The question is 4x square plus minus 8x plus 4. See, minus is here. It means it will be applied at second a minus b का whole square. How can we solve? Let us see. ये 4 first we should this one the square of the 4. You should write 2x. a 2x को आप सकते हैं जैसे a b का होल स्क्वायर जो होता है, you should write a square into b square. अगर प्रोडक्ट फॉर्म में कोई चीज है तो इसका मतलब we will use the square on the these two term, right? Same 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर x को you should write like this. Okay, see 4 किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है प्लस माइनस 3 है. 2 क्या है? 2 is the part of the formula. In the formula you always use the 2ab. So you should also write in the form of the 2ab. 2 a की वैल्यू क्या है? 2x है और b की वैल्यू क्या है? 2. See 2 to the 4, 4 to the 8. It means after multiplication you will find the same result. 2 का स्क्वायर 4, ये इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब बताइए किसका आइडेंटिटी है? ये लिख सकते हैं 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये इसकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b a माइनस b का होल स्क्वायर. अगर we will solve we will get the same result. Okay, you should write 2x minus 2 and again 2x minus 2. ठीक, it is your result. If you want to again factorize, 2 is here common, you should take 2 as a common. 2x minus then 2 will be take a common, by default 1 will be there. Again 2 is here common, x by default 1 will be the common. 2 to the 4, x minus 1 or x minus 1, it will be your final result and it is your result. You can also split this expression
like this. It is your final result. Okay, let us see the next question. Next question, the sixth part. 121b square minus 88bc plus 16c square. चेक करिए कि 121 किसका स्क्वायर है. When you factorize, you will get it is a factor of the 11. Okay, तो factor of 11 you should write 11b का होल स्क्वायर. ये क्या है? 4c का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया. यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिखो, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस के साथ 2ab है, तो इसको 2ab की टर्म में इसको a लाइक 2. a की वैल्यू क्या है? 11b और c की वैल्यू क्या है? 4c. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट. यू शुड राइट 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर. ये इसका फैक्टर हो गया. इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं 11b माइनस का 4c. 11b माइनस का 4c. इट विल बी योर फाइनल रिजल्ट. This clear? Okay, let us see sixth part of the same question. Sorry, seventh part. The seventh part of question क्या है? L plus m का होल स्क्वायर माइनस का 4lm. Let us see. यार यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4lm. ये दोनों कोई आइडेंटिटी नहीं बना है, बट ये आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर का. तो पहले हम इस आइडेंटिटी को स्प्लिट करते हैं. a स्क्वायर, दिस वन a, दिस वन b. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab, राइट, और माइनस का 4lm. आई हैव एक्सप्लेन. इसको स्प्लिट कर दिया. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब इसमें अब देखते हैं विच वन इज द लाइक टर्म. 4lm 2lm इज द लाइक टर्म. मींस वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट द लाइक टर्म. l स्क्वायर इज दिस, m स्क्वायर. 4 प्लस माइनस जहां आएगा वी विल ऑलवेज सबट्रैक्ट. 4 में से 2 जाएगा, वी विल गेट 2lm, राइट. विच वन इज ग्रेटर, 4 और 2? 4 is greater. What is sign before the 4? Means negative sign is there. We will use the negative sign. After we will subtract, we will see which one is greater. If 4 is greater, then we will use the sign before the 4. If positive sign will be there, we will use the positive. If there is a negative and this is यहाँ negative यहाँ positive होगा तो हम positive लगाएंगे. It is clear? फिर से देखिए, a square plus b square minus का 2ab, मतलब कि यहाँ पे l minus m का होल स्क्वायर है. आप चाहे तो इसको m माइनस l का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. स्क्वायर के टर्म में a माइनस b लिखिए, फिर b माइनस a, बोथ हैव द सेम रिजल्ट. ओके, यू शुड राइट l माइनस m और l माइनस m. इसको 2 टाइम्स. यू कैन आल्सो राइट m माइनस l फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में अगेन l m माइनस l. इट इज क्लियर? ओके, लेट अस सी द next part. The next part is here. a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर. a की पावर 4 कभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं है. हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के टर्म में देखा, लेकिन a की पावर 4 जिसका पावर 4 उसको कोई आइडेंटिटी तक नहीं है. सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट इनटू द a की पावर 4. हाउ? सी, इफ वी राइट a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर 2 टू द 4, b स्क्वायर होल स्क्वायर 2 टू द 4. ये अब आइडेंटिटी से में लिखते हैं. यहाँ प्लस 2, इसको a स्क्वायर लीजिए और इसको b स्क्वायर, राइट. इसको कैपिटल A मान लीजिए, इसको कैपिटल B मान लीजिए, इसको कैपिटल A और कैपिटल B. सी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab. ये आइडेंटिटी फर्स्ट फॉलो कर रहा है. तो वी कैन राइट a प्लस b का होल स्क्वायर. इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट द वैल्यू ऑफ a इज a स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ b इज b स्क्वायर. ये इसका होल स्क्वायर होगा. ये a है b, राइट. अब इसी को दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इट विल बी योर फाइनल रिजल्ट. इट इज क्लियर? तो a की पावर 4 को पहले आप a स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करके a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर. इस फॉर्म में ऑलरेडी से है. अब इसको देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a
बी, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी के फॉर्म में बनना है, तो सो यू शुड राइट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इट इज क्लियर? Okay, let us see the next question. Question number 2. We will use the last one identities, a square minus b square. The first part of the question, second is here, 4p square minus 9p square. आपको पता है आइडेंटिटी a square minus b square की आइडेंटिटी फर्स्ट ब्रैकेट में a minus b, सेकेंड ब्रैकेट में a plus b. a minus b और a plus b का इसका बेस यू शुड राइट. तो अभी देखिए इसको भी लिखते हैं a स्क्वायर. तो ये देखते हैं किसका स्क्वायर है, ये 2p का होल स्क्वायर है. पहले आइडेंटिटी में ये क्या है, 3q का होल स्क्वायर है. पहले हमने इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. व्हेन यू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म देन यू शुड राइट इन दिस फॉर्म. ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया. फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, 2p माइनस 3q. सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b. राइट, यू शुड राइट एनी वन ब्रैकेट फर्स्ट. यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, या फिर a माइनस बी और a प्लस बी, both have the same region. So don't be confused which one we write the first, either plus or minus. You should write any one of them. It means it is your final result of the question 4p square minus 9p square. It is clear? This total depend on your identities. I will requesting you, please learn the identity, then you solve. Without identity, you cannot solve any problem like this. Okay? Let us see the next part of. Okay, the next question is here. 63 किसी का स्क्वायर नहीं है, 112 किसी का स्क्वायर नहीं है. मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं है. फर्स्ट वी शुड टेक, जब इस तरह क्वेश्चन होगा जब कोई स्क्वायर नहीं होगा तो पहले फर्स्ट वी शुड चेक देयर इज एनी कॉमन टर्म और नॉट. कॉमन है कि नहीं, अगर कॉमन होगा तो फर्स्ट वी शुड टेक द कॉमन. बिफोर सॉल्विंग फर्स्ट वी शुड फैक्टराइज. इसको फैक्टराइज करिएगा. सपोज 7 9 जा 63 3 into 7 a स्क्वायर. इसका 2 into 2 into 2 into 2 into 7 b स्क्वायर. पहले इसका आप एलसीएम के थ्रू अगर इसको फैक्टराइज करेगा तो 16 से हो जाएगा 112 आएगा. ओके, सी व्हाट इज द कॉमन बिटवीन these two terms. 7 is here and 7 is here, so you should take 7 as a common, right? 3 into 3 a स्क्वायर, मतलब 2 टर्म मिल गया. देखो यहाँ पे 2 टर्म है, इसको लिख लो a, इसको a. 4 into 4 b स्क्वायर. राइट, अब इसको अब ये आइडेंटिटी टर्म में बन सकता है 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर. अब ये आइडेंटिटी बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ यू कैन राइट फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b. It will be your final result. Alright, very good. It is the result in front of you. Let us see the next question. This one, fifth part. Okay, let us see the fifth part of this. The next question is here, l plus m का होल स्क्वायर और l minus m का होल स्क्वायर. इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं. पहले तो अलग अलग आइडेंटिटी मान के, या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में. अगर मैं सिंगल सिंगल करूं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab. ठीक, अगर ये माइनस में आते हैं, इफ नेगेटिव साइन आर देयर बिटवीन द बाइनोमियल टर्म ट्राइनोमियल टर्म, ठीक है, तो यू मस्ट यूज अ ब्रैकेट. अगर मोनोमियल है तो नो नीड टू यूज अ ब्रैकेट, बट बाइनोमियल ट्राइनोमियल इज हियर, यू मस्ट यूज द ब्रैकेट. l a minus b whole square a square b square minus 2ab. राइट, इसको देखिए l square b square 2ab. when we open the bracket before negative sign are there, then all these sign within a bracket must be changed. Very good. So you should write l square plus minus minus plus minus minus और माइनस माइनस प्लस 12. इट इज क्लियर. इट मीन्स ऑल द साइन विद इन अ ब्रैकेट मस्ट बी चेंज. अब देखिए सारा वो ब्रैकेट ओपन हो गया. अब हम सिंप्लीफाई करते हैं. अगर लाइक टर्म है, अगर उसका डिग्री सेम है, अगर साइन अपोजिट है,
तो ये रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा। लाइक टर्म होगा वेरिएबल, लाइक टर्म इज वेरिएबल और डिग्री अगर सेम है तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। एल स्क्वायर हियर एंड एल स्क्वायर हियर, बट इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड आते हैं विल बी रिड्यूस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड विल बी रिड्यूस टू ln प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ln 2 plus 2 means 4 ln, it will be original. It is clear? It is the first method. Let us see the second method. If you apply any one of the any method, but result must be same. Let us see the same method. Please see here. Suppose if you can select A, if you take B, तो इस पूरे के A स्क्वायर, इस पूरे को B स्क्वायर, we will use IDT. तो फर्स्ट ब्रैकेट में A प्लस B, A ये पूरा A हो गया, अब प्लस B, अगर प्लस साइन है तो उसके when we write there will no change of the sign of second bracket, but if you will use a negative sign then how can write A माइनस, मैं बताया ना जहाँ भी एक से अधिक टर्म होगा तो उसको लिखने से पहले ऐसा माइनस साइन यूज, माइनस अगर है तो उससे पहले आप ब्रैकेट यूज करिएगा, आप हो जाएगा L माइनस N. When we open the bracket, then all the sign within the bracket must be changed. Alright? Then how can you solve? देखो प्लस N माइनस N it will be कैसे, L plus N ये 2L आएगा, मतलब आप लिख सकते हो L बचा और L बचा, L plus N. अगर ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, when we open the bracket all the sign within the bracket must be changed, ये माइनस 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 प्लस, देखिए ये प्लस L से माइनस L कैंसिल हो गया, तो ये L plus L 2 times L, M plus N 2 times of L, 2 to the 4. When you multiply you will get the same result. You can use any identity, first identity and the second identity for solving this question. You will find the same result. Let us see the last part of the question once again. How can you solve? 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square. So before solving this question, first we should see वेरिएबल जहाँ पे जिसमें वेरिएबल पे स्क्वायर नहीं है उसको देख करते हैं b और c. It means we will select b and c as a within a bracket. b और c जहाँ भी उसको एक साथ लेते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ते हैं. देखो b c यहाँ b और c वाले को एक साथ लेते हैं, तो यहाँ ले सकते हैं 25a स्क्वायर, इसको अगर एक साथ लेते हैं तो हम इसमें से -1 कम निकालते हैं. अगर किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस लेते हैं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वहाँ पे -1 होता है. 1 इज हिडन, यू शुड राइट 1 और यू कैन नॉट राइट, इट डिपेंड ऑन यू. तो आप लोगों का अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ऑल द साइन विद इन ब्रैकेट मस्ट बी चेंज. माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 28bc, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा 49c स्क्वायर. अब यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी बन सकता है, तो 25 को यू शुड राइट 5a स्क्वायर. इसमें देखते हैं ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ये माइनस है -2, क्योंकि फॉर्मूले का 2 होता है. a की वैल्यू हो जाएगा 2a और 2a सॉरी a की जगह क्या है, सॉरी b है, a की जगह 2b और c की जगह 7c, राइट. अभी देखिए 2 to the 4, 7 4 the 28bc. After simplification you will find the same as above. अभी देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपका जो आइडेंटिटी बन रहा है वो आपका a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, राइट. a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका 5a स्क्वायर. अभी तो आपने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया है, लेकिन अगेन चेक करिए यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी बन गई है. ये a मान लो पूरे को, इस पूरे को कैपिटल b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगेन यू राइट a माइनस b और a प्लस b, तो 5a प्लस ये आपका b है, 5a प्लस a प्लस b, ये a प्लस b हो गया, और ये a माइनस
2b माइनस 7c। अभी जैसे बताया कि जैसे कोई नेगेटिव साइन किसी ब्रैकेट से अगर कोई एक से अधिक कोई टर्म है बाइनोमियल है तो उस बाइनोमियल को लिखने से पहले अगर नेगेटिव साइन है तो वी विल यूज अ ब्रैकेट। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। व्हाट वी विल गेट, तो ये आपको जाएगा 5a प्लस का 2b माइनस का 7c एज इट इज। नाउ ओपन द ब्रैकेट 5a प्लस माइनस माइनस का 2b माइनस माइनस प्लस का c, it is your final result. It is clear? Okay, so that's all for today. You will try the next all the remaining question. I hope you can do it. It is very easy. It is totally depend on your ID. Okay. In the next lecture we will discuss about next question of the same exercise. Okay. Thank you and have a nice day.